Okay. The peculiarity is मतलब खास. It's so peculiar, na? We say peculiar means it is very fixed behavior about a person, behavior or whatever it is, or attitude or whatever it is, like that. Peculiarity. European managing agencies, which dominated industrial production in India, were interested in certain kinds of products. They established tea and coffee plantations, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining, indigo and jute. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. When Indian businessmen began setting up, these are not of our matlab. That's what I'm just reading. You also follow me, okay, beta? In the late 19th century, they avoided. I think I enjoyed those 2 days. Did you? Thursday and Friday? I enjoyed those 2 days. And you know, next day, Friday, Saturday, I just missed it due to. मैं बैठी गई कि इनका करना फिर मैं अरे आज तो क्लास में आज बच्चों लोगों का दिवाली है. ओके डोंट बी सीरियस ऑन उसका अच्छा नहीं लगती ऐसे सीरियस फेस में थोड़ा अच्छा रहो. Most of these were products required primarily for export trade, not for sale in India. You just follow me by looking at your book. When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, आपको बताना है what is the peculiarity. तो बहुत ध्यान से देखो, बुक देखो. जो लोग behind the screen है, I will also ask them. It is not your privilege that you will sit behind without opening your camera and you will not also answer. No. They avoided competing with Manchester goods in the Indian market. Since yarn was not at an important part of the British importers into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn rather than fabric. Fabric means what is fabric? What is yarn? Yarn is the thread which is used to make the fabric. एक व्यक्ति जब बोलेगा दूसरे लोग कोई नहीं बोलेंगे. This is a very common discipline that one has to. Yes, अनुष्का बोलो. Ma'am, yarn is the thread while fabric is the cloth. Very good answer. Rather than fabric. This is a proper answer. और जब एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा को नहीं बोलना. When yarn was imported, it was only of the superior variety. The yarn produced in Indian spinning mills was used by the handloom weavers in India or exported to China. By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization. As the Swadeshi movement gathered momentum, Swadeshi, your first, पहले आपने study करा है this thing. Our presentation is over, then I will start the revision of Indian nationalism. तो वो जरूरी है उसका revision करना. और आप लोग को जो मांगा था वो सब चीजें भेजना है मुझे. प्रोजेक्ट वाला. I need those charts. How can I avail them? तुम तो अभी ऐसा भेज दो. तुमको भेजा था ना मैंने. आपको प्रोजेक्ट भेजना है. Yes, ma'am. उसको मार्किंग करना है बेटा. अगर मुझे ऐसे ही ऐसे मिल जाए कैसे मिलेगा ऐसे. कोई कहीं रहता कोई नहीं. By the first decade of the 20th century, a series of changes affected the. थोड़ा रुक के भेजना, अभी नहीं भेजो. पैटर्न एक बार और मुझे पूछ लेना. पहले मैं सेकंड असेसमेंट निपटा लूं. ठीक है. अगर आपका थोड़ा बहुत कुछ काम बचा हुआ है कर लो उसको पूरा. As the Swadeshi movement gathered momentum, nationalists mobilized people. ये बात याद दिलाना मुझे आप लोग
कि मैम हमको नेशनलिज्म इन इंडिया हमको रिविजन करना है। आई कीप फॉरगेटिंग चिल्ड्रन, प्राणायाम कर रही हूँ पर फिर भी दिमाग काम नहीं करता। To boycott foreign clubs, industrial groups organized themselves to protect their collective interests, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions. From 1906, moreover, the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market. So industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. क्या करा Indian industrialists? What did they do? Since they were the yarn that they used to produce were कैसा in nature? What was in nature? Course. Coarse. Very good. बहुत अच्छा. Coarse in nature. So what they did? The industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. Yet, till the First World War, industrial growth was slow. The war created a dramatically new situation, with British mills busy with war production to meet the needs of the army. ध्यान दें, उस दौर में वर्ल्ड वॉर के टाइम में with the British mills busy with war production to meet the needs of the army, Manchester imports into India declined. Suddenly, Indian mills had a vast home market to supply. As the war prolonged, Indian factories were called upon to supply war needs. Jute bags, cloth for army uniforms, tents and leather boots, horse and mule saddles, and a host of other items. New factories were set up क्योंकि लंदन से कहाँ तक प्रोड्यूस करके यहाँ ला के बेचेंगे, तो इंडियन फैक्ट्री बोला तुम प्रोड्यूस करो. Although they were under British rule, but then and old ones can multiply shifts. Many new workers were employed, and everyone was made to work longer hours. Over the war years, industrial production boomed. Boomed मतलब स्पार्ट बड़ा, बहुत बड़ा. बूम मतलब बहुत ज्यादा. It was big. After the war, Manchester could never capture its old position in the Indian market. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताऊँ, आपकी बात. After the war, Manchester could never recapture its old position in the Indian market. मतलब during the war years, the British Manchester में जो कपड़े का जो मैन्युफैक्चर होता था वो स्टॉप हो गया. It was stopped. Indian industries came up and they took the speed. और इसकी वजह से ये जो इतना दिन का छूट गया है वो कभी इट नेवर कम बैक अगेन. अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे ना, आप पढ़ रहे हो करके यू आर ऑन द वे. अगर आप पढ़ाई छूट जाएगा तो आप कभी कैच नहीं कर पाओगे. लगातार लगे रहो तो काम बनता रहेगा. समझ में आ रहा है? एक बार करके आपने बढ़िया करा और छोड़ दिया फिर तो गड़बड़ हो जाता मामला. So you have to continuously do it. Manchester never catch, देखो बोल रहा है, कभी नहीं कर पाया. All the girls are only in the screen. Not a single boy is there. Not a single boy. Unable to modernize and compete with the US, Germany and Japan, and the economy of Britain crumbled after the war. Crumbled मतलब खतरे में था, कम हो गया. Crumbled मतलब ऐसे संकुचित हो गया, बिखर गया. crumbled eggs खाते हैं जो लोग, एक खाते हैं, they eat also crumbled eggs. भुजिया उसका टुकड़ा टुकड़ा पीस रहता है, उसका do you eat eggs? No, you are a vegetarian. Ma'am, not pure. Ma'am, I can eat eggs, but not on regular basis. I don't understand your thing. Do you Ma'am, eat eggs? it is. Yes, ma'am, I do. बस बात खत्म. जो ऑमलेट बनाते हैं ना उसको स्क्रम्बल करते हैं, स्क्रम्बल करके
उसको भुजिया बना देते छोटा छोटा टुकड़ा, तो दैट इज कॉल्ड क्रम्बल। क्रम्बल नहीं है, दैट इज क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स ऐसे हो जाए जैसे पेपर को हम फोल्ड करके ऐसे, दिस इज क्रम्बल, दिस इज क्रम्बल। नेहा आज मुझे बोई बोई क्यों लग रही है? बोई का टेयर करा क्या? ऐसा लग रहा है बोई बोई। Substituting नहीं, unable to modernize and compete with the US, Germany, Japan, the economy of Britain crumbled after the war. उसका इकोनॉमी क्रम्बल हो गया कि इतना लंबा लड़ाई लड़ा। With this, cotton production collapsed and exports of cotton cloth from Britain fell dramatically. With the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers and capturing the home market. Small scale industries, यही इसी टाइम पे तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑल्सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेनली जमशेदजी टाटा जो बढ़ा ना, बढ़ता गया, सब देश की फैक्ट्री को, देश की इंडस्ट्री को उन्होंने बोला, डिमांड कर दिया ना, सब वार में यूज होने वाली चीजें अभी तो हमने पढ़ा ना। Within the colonies, local industries. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Within the colonies, local industrialists gradually consolidated their position, substituting foreign manufacturers, and capturing the home market. Small scale industries predominate. I showed you this sari, ये संबलपुरी साड़ी है. While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. Most of them, about 67% in 1911, were located in Bengal and Bombay. Over the rest of the country, small-scale production continued to predominate. Only a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factories, 5% in 1911 and 10% in 1931. The rest worked in small workshops and household units, often located in alleys. Alleys means and bylanes. Bylanes मतलब गली, गली आ रहा होता ना, गली गली में bylanes. Alleys and bylanes, that is gully, invisible to the passerby. In fact, in some instances, handicraft production actually expanded in the 20th century. This is true even in the case of the handloom sector that we have discussed. While cheap machine-made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weaver survived despite problems in the 20th century. Handloom cloth production expanded steadily, almost trebling. Trebling is 3 times. Into 3, trebling is 3 times. Trebling between 1900 and 1940. How did this happen? ऐसा कैसे हुआ? How did this happen? This was partly because of technological changes. Handicrafts people adopt new technology if that helps them improve production without excessively pushing up costs. So, by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. This increased productivity. अरे हेमा मैडम कितना तेज बोल रही है. Productivity per worker, speeded up production and reduced labor demand. By 1941, over 35% of handlooms in India were fitted with fly shuttles. In regions like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal, the proportion was 70 to 80%. There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compete with the mill sector. Certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition with small industries. Amongst weavers, some produced coarse cloth
while others wore finer varieties. The coarser cloth was bought by the poor and its demand fluctuated violently. In times of bad harvests and famines, when the rural people had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy cloth. The demand for the finer varieties bought by the well-to-do was more stable. The rich could buy these even when the poor starved. Famines did not affect the sale of the Banarasi और बालूचोरी साड़ीज बालूचोरी साड़ी वेस्ट बंगाल का है फिर कहिए moreover as you have seen mills could not intimate could not imitate specialized weavers saris with woven borders or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by the mill production. जो चीज वीवर्स लोग हाथों में बनाया जो चीजों को करते इट कैन नॉट मेक बाय द मशीन कुड नॉट रिप्लेस जो बॉर्डर बनाने में और वो लुंगी बता रहा है वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल आपने आसाम की गमछा देखा है इधर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में प्रिंसिपल सर ने पहले तो अपने को बाबा की फोटो को रखा किसी ने उनको इतने मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसने भी दिया है उनको बहुत इज्जत करके दिया है चीज Weavers and other craftspeople who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. Very often, the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process. But they were not simply remnants of past times in the age of factories. Remnants means memory. Smriti. Their life and labor was integral to the process of industrialization. Ma'am, हाँ ma'am, where is Travancore? Travancore जगह का नाम है तमिलनाडु It is the name of the place Travancore. Market for goods. We have seen how British manufacture देखो इसको समझो ये जो ब्रांड है ना ये ब्रांड का फोटो है जैसे तेल सरसों की तेल के ऊपर डू यू नो समथिंग आई वांटेड टू टेल यू आई जस्ट got it learned it from the television so जो ऑलिव ऑयल लोग खाने के लिए सोचते हैं ना ऑलिव ऑयल जो लोग खाते हैं उनका हार्ट और नहीं होगा इट इज वेरी गुड ऑलिव ऑयल की जो कंपोनेंट्स है और मस्टर्ड ऑयल के कंपोनेंट दे सेम इसलिए मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड फॉर हार्ट आई जस्ट वांटेड टू से दिस ये ब्रांड तेल की कनस्तर होता था पहले हमारे घर में आता था 40-45 किलो तेल आता कनस्तर बड़ा बड़ा कनस्तर वो आता था हमारे घर में एक तो वो कनस्तर सरसों का तेल का आता था एक किरोसिनी ऑयल का आता किरोसिनी ऑयल में एक पंप टाइप था ऐसे करते थे तो उसकी हैंड से वो निकलता था किरोसिन तेल सरसों का तेल ले आओ तो इसे चले खाने के लिए तो ज्यादा चाहिए मैंने नहीं देखा कुछ और हाँ बीच बीच में कभी कोई पाम ऑयल कुछ मिठाई पिठाई कुछ पूरी ऐसे बना हम लोग के घर में पूरी ज्यादा नहीं बनता ये बहु लोग आके शुरू करते हैं We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market and how Indian weavers and craft persons, traders and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection. मेरे को इसलिए याद है क्योंकि ये सब फोटो ना टीन के ऊपर से निकाल के हम लोग खेलते थे बचपन में try to extend the market for their produce. But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. कोई नया चीज बाजार में आता है तो उसको बताते हैं इसको खरीदो ये बहुत अच्छा है इट हैज डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आजकल होता है पहले बोलते थे एडवर्टाइजमेंट तो कोई नहीं बोलता विज्ञापन में कोई कैसे बताते थे ये ब्रांड अच्छा है ये ब्रांड ऑयल अच्छा है
लोगों को बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? दैट्स व्हाट एडवर्टाइजमेंट ऑल अबाउट. But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. They have to feel like using the product. How was this done? इसको कैसे करता है? लोगों को कैसे पहुंचा? एडवर्टाइजमेंट करा. तब तो टीवी भी नहीं था, मास मीडिया भी नहीं था. One way in which new consumers are created is through advertisement. As you know, advertisements make producer products appear desirable and necessary. They try to shape the minds of people and create new needs. टुडे वो दुकानदारी बोलता है मैडम नई चीज है, आजकल भी बोलते हैं ये सब बोलते हुए ये लोग, ये देखो बहुत अच्छा है. They try to shape the minds of people and create new needs. Today we live in a, if अगर अच्छा हुआ तो लोग उसको दोबारा खरीदेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो नहीं खरीदेंगे. They try to shape the minds of people and create new needs. Today we live in a world where advertisements surround us. They appear in newspapers, magazines, hoardings, street walls, television screens. But if we look back into history, we find that from the very beginning of the the industrial age, advertisements have played a part in expanding the markets for products and in shaping a new consumer culture. पहले भी मैंने देखा कभी कभी खुला तेल भी लाया, खुला नमक भी लाया, तो पैकेट नहीं था, प्लास्टिक पैकेट्स नहीं था, वो भी कनस्तर दुकान वाला कनस्तर रखता था, उसी में से 1 किलो निकाल के दे देगा. अगर हमको 1 किलो चाहिए, ऐसा ऐसा जिसमें नापते दूध वाला नापता ना, ऐसी चीज है उनके पास, उसमें नाप के हमारी हम बोतल ले जाते थे. हमारे घर में बहुत स्क्वाश बोतल होता था, स्क्वाश कितना चोरी करके हम स्क्वाश किया, चुपके चुपके दोपहर को अलमारी खोल के, और उस स्क्वाश तो फ्रीज तो नहीं था, उसको निकाल के उसको थोड़ा डाल के गिलास में पीते. आजकल तो बोल वाला है सब चीजों में खाओ. When Manchester industrialists began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles. The label was needed to make the place, manufacturer, and the name of the company familiar to the buyer. The label was also to be a mark of quality. When buyers saw "Made in Manchester," वो बोल देगा "Made in India." मैंने बोला था कंघी की बात बताई थी आपको, German से "Made in Manchester," written in bold on the label. They were expected to feel confident about buying the clothes. Oh, मैनचेस्टर से बना है, चलो चलो देखो, अच्छा होगा मैनचेस्टर. विदेशी है पहन के फिर इतराते हैं ये ऐसा कपड़ा ऐसा कपड़ा. But labels did not only carry words and text, they also carried images. देखो these are the images. ये जो इमेज देख रहे हो ना, सब इमेजेस है. ऊंची माल लिखा हुआ है. Images of Indian goods and they also carried images and were very often beautifully illustrated. If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations, and the way they appeal to the people. I remember मेरे मम्मी अगरबत्ती पैकेट ना पहले आश्रम का नहीं करते थे, अब तो वो यूज करते. बहुत अच्छा चित्र बना रहता है उसमें, गुलाब की फूल कुछ ऐसा चित्र बना रहता था. तो उसको ना पूजा जिस दिन खत्म हो गया अगरबत्ती, पूजा के घर से बाहर फेंक देती है. तो उसमें हमारी होड़ लगा रहता है कौन उसको छीनेगा. इतना उसको लेके छोटे बच्चे लेटे गाना गाते हैं, बात करते, हम भी ऐसे करते थे. ये मेरा वो है, उसको सूंघना. मैं तो आज भी अगरबत्ती का पैकेट इसमें मार्क लगा के रखता, एज मार्क. आश्रम वाला था, खुशबू आई चीजें सूंघना. Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on these labels. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat
फेमिलियर टू इंडियन पीपल। चारू, चारू, चारू क्लास में नहीं है, मालूम है तुम? यस मैम। तुम क्लास में क्यों नहीं थी? मैम हूँ। हूँ तो क्या, 5 बार बुलाने के बाद हूँ। जरा निकलो, जरा दर्शन दो। क्या है, कैमरा ऑन करो। यस मैम। तुमने मुझे आइडिया दिया इन बातों की। 21 नवंबर तुम्हारा टेस्ट है, सैटरडे है। ऐसे दिनों एग्जाम की ना, 10 मिनट में एग्जाम खत्म, गूगल फॉर्म, उसके बाद प्रेजेंटेशन चालू होगी। टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? ठीक 10 मिनट में मैं यहाँ बंद कर दूँ। उसके बाद प्रेजेंटेशन तुम दोगी 21 तारीख को, पहला प्रेजेंटेशन तुम्हारी। समझ में आ गया? यस मैम। बस मैंने बोल दिया। एंड दोज आर जय अभिषेक जैन। कहाँ अभिषेक जैन? मैं फोन लगाती हूँ मैम उसकी वो मम्मी को। नहीं है। वो कभी कभी भी नहीं आता है, ये नेवर कम्स टू द क्लास। अभी हेमा मैडम चिल्ला रही थी, पता नहीं कहाँ जाके बैठा है। कह रहे उसको फोन लगाइए, बोलिए 10th क्लास में क्या है। अभी कर रही थी बात। जो भी है जय, देखो अभी जय आया था, फिर जय अभी नहीं है। दिव्यांशी आ गई? दिव्यांशी, यस मैम। दिव्यांशी तुम वापिस आ गई क्या? मैम मैं नहीं गई थी। अच्छा, तुम यही थी। कोई बात नहीं, रेडी रखना अपना यस मैम। प्रेजेंटेशन गूगल फॉर्म के बाद, ठीक है? यस अपन कर मैम लो। रेडी है। हाँ, अपन कर लो। ऐसे तो शायद तुम सार बोल रहे थे हम सब जाएंगे उधर, मुझे नहीं मालूम। आई अंडरस्टूड लाइक दैट, कोई बात नहीं। चलिए, हाउ आर दिस डन? वन वे इन व्हिच न्यू, नहीं यहाँ तो पढ़ा है। Images of Indian gods and goddesses regularly appeared on the web. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. ये तो जहाँ भगवान की देवियों का, सरस्वती लक्ष्मी ऐसा फोटो लगा दिया ना, वो अपने आप हमारा माइंड झुक जाता है। हम कहते हैं ये तो भगवान वाला चीज है, ये अच्छा है। सेंटिमेंट्स। The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. तुम देखो आजकल भी जो आता है कैलेंडर, न्यू ईयर कैलेंडर, तुम देखना कितना कोई अपना गुरु जी का फोटो छाप देता है, कोई राधा कृष्ण का फोटो छाप देता है, भगवान लोगों का। मैं कभी भी नेवर परचेज कैलेंडर अलोंग विथ माई, मतलब गुरुदेव की फोटोग्राफ कभी नहीं लेती। NFL का विजू मैडम मुझे देती थी, सी फैमिली, राम राम, भगवान राम का। मैंने बोला मुझे देना नहीं, तुम इसको 1 साल के बाद उसको कहाँ डिस्पोज करेंगे हम? भगवान का फोटो लगाओगे, फिर उसको, एक तो मेरे पास था भगवान राम का, नहीं कृष्ण का, उसको मैंने लेमिनेट करके टांगा। कितने लेमिनेट करो? मैं आश्रम से भी नहीं लेती हूँ कलम, नहीं, डेट तो कैसे ही मिल जाए, उसको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं लेती, मैं तो ये हिमालय वाला मांगती हूँ, हिमालय वाला मेडिसिन, बड़ा नेचुरल फ्लावर, वो दवाइयों का वो है, उसको लगा तो बढ़िया। डेट देखना तो डेट तो कोई उड़िया कैलेंडर भी है, बाकी कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर भी है, कैनरा बैंक दे देता है 1-2, उसमें डेट लिखा हुआ बड़ा बड़ा। भगवान का फोटो चपके क्यों, फिर उसको डिस्पोज तुम कैसे करो? बहुत मुश्किल, इसलिए मैं नहीं लेता। मेरे बस में, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फाड़ू, फेंकू, कुछ करूं ना। In the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products. Unlike newspapers and magazines, calendars were used even by the people who could not read. They were hung in tea shops and in पान की दुकान में पूरे चारों तरफ छपा हुआ है, ये वो, उसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। They were hung in tea shops and in poor people's homes
just as much as in offices and middle class apartments. And those who hung the calendars had to see the advertisement day after day through the year. In these calendars, once again, we see the figures of gods being used to sell new products. मैं बीजू मैडम बोल दिया मैडम मुझे मत देना है सर भगवान वाला फोटो जिसमें वो तस्वीर मुझे मत दीजिए एक लिया था मैंने ओम का कैलाश का वो अलग है वो तो रेयर पिक्चर है कैलाश में बर्फ में माउंट कैलाश में बर्फ में ओम लिखा हुआ ये क्या थी उसमें आंचल आंचल वगैरह मुझे दिया एनएफएल का वो एक्सक्लूसिव है उसको मैंने सूटकेस के अंदर रखा है now like the images of gods figures and of important personages of emperors and nawabs adorn advertisement and calendar. The masses very often seem to say, if you respect the royal figure, then respect this product. When the product was being used by the kings or produced under the royal command, its quality could not be questioned. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, then buy products that Indians produce. Advertisements became the vehicle of the nationalist message of produce. अब देखिए खत्म ही हो गया इतना मैंने बोला था ट्यूसडे को ही खत्म हो जाएगा बोला था conclusion clearly the age of industries has meant major technological changes growth of factories and the making of a new industrial labor force however as you have seen hand technology and small scale production remain an important part of the industrial landscape. What would you now say of the images they produce? ये रॉयल वाला इधर है देखो घोड़ा जा रहा है सांप के नीचे कोई भगवान बैठे हैं देवी लॉर्ड कृष्ण बैठे छोटा ये कौन सनलाइट सोप कहाँ है तब तो हम लोग बहुत धोया इसमें कपड़ा सनलाइट पाउडर भी आता है सनलाइट सोप पीला रंग का होता है डे मेडिकल्स का है अच्छा देखो ये खत्म हो गया अब चारों तुम्हारा डेट आगे हो गया अभी थर्सडे को यूट्यूब पर थर्सडे Yes, ma'am. हाँ बस हो गया चैप्टर खत्म हो गया ना तो ये जो ये है हम लोग तो बहुत कुछ इसको देखते थे लुंगी भी आता हमारे जब तो लुंगी पहनते बहुत सारे जेंट्स लोग टाइम भी एकदम नहीं यहाँ पे मैंने डेवलप किया तो इसमें जो है ये जो पोर्शन हमने अभी पढ़ा ये पोर्शन हमारे इसमें नहीं आता एनीवे इट इज ए दिस इज अ चैप्टर दैट इज फॉर द असेसमेंट मतलब पीरियडिकल्स आज कितना 70 हो गया इसमें और कुछ बच्चा है बेटा हिस्ट्री में कुछ और बच्चा नहीं ना वर्क लाइफ रिलीजन हो गया हिस्ट्री का हो गया अभी हम थर्सडे से क्या प्रेजेंटेशन शुरू करें अभी तो प्रेजेंटेशन करूँगी क्लास 9 को उनको बोलना पड़ेगा लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस आई हैव टू टेक उस दिन लिया करके ना ये चैप्टर आज खत्म हो गया अच्छा हु आर प्रेजेंट यहाँ पे लड़के कौन है अभिषेक भार्गव नहीं चाहिए मुझे चाहिए अभिषेक जैन नहीं है क्लास में बासवा आपको आज बड़ा दर्शन दे रहे भैया नमस्ते हैप्पी दिवाली सायरम मैम आपको भी हैप्पी दिवाली बड़ा मोटा हो गया ठीक है थैंक यू आप पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे हैं मैम नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा थर्सडे यस मैम मैम मी साक्षी
मैम मैं भी। मैम मेरा भी प्रेजेंटेशन हर्षित। नहीं हुआ है। मैम मेरा भी मैम, अभी प्रेजेंटेशन बोलना नहीं नहीं है, हुआ। चुपचाप बैठो। एवरीबॉडी कीप क्वाइट, नाउ आई एम टॉकिंग टू वासवा विपिन ओनली। बेटा थर्सडे, थर्सडे को कौन सा तारीख है Yes, ma'am. अपने यहाँ? आज 17 है, 18, 19। ओके, नेक्स्ट कौन बोला था अभी? मैम नी साक्षी। मैम हर्षित। मैम साक्षी। रुक जाओ, चुपचाप बैठा अभी। चारू, चारू, यस मैम। चारू, यस मैम। 19 तारीख। यस मैम। साक्षी तुम्हारा कब है? साक्षी, यस मैम। अभी अल्लाह कहाँ, डेट कहाँ है तुम्हारी? मैम डेट नहीं दी थी। तो अभी तो हो ना, अभी तो मांग रही यस मैम 19। मैम हर्षित। ओके, लक्ष्य कहाँ है तुम्हारा भाई? पर से नहीं बोलना नहीं है, तुमको कैंसिल करा। रुक जाओ, लक्ष्य, साक्षी लक्ष्य कहाँ है? मैम वो नहीं है। 10th क्लास में बैठा है? साक्षी, यस मैम। वो 10th क्लास में बैठा है, कुछ फिक्र है उसको? बुलाना तुम्हारी मम्मी वगैरह कोई, मम्मी को बुलाओ, मम्मी, बड़ी मम्मी, कोई भी बुलाओ। और खोलो माइक, खोलो, मैं बात करना चाहती हूँ। कैमरा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जल्दी। जिसका सोनी हो गया। जय, जय सुबह आया तो कहाँ चला गया वो? जय मंडल। हाँ, साक्षी करो। नमस्ते, नमस्ते। आप कौन है साक्षी का? साक्षी मम्मी। मम्मी। आपका क्या लक्ष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? लक्ष्य ना क्लास में आता है, ना प्रेजेंट, नहीं हंसिएगा नहीं, आई एम वेरी सीरियस। लक्ष्य ना क्लास में आता है, ना प्रेजेंटेशन दे रहा है। क्लास 10th में बैठा है, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अब मैं बुला रही हूँ, लक्ष्य ही नहीं क्लास में। पता नहीं वो कहाँ चला गया मैडम, क्लास ही नहीं लेता वो। नहीं तो ऐसा थोड़ी चलेगा, वो तो 10th क्लास में बैठा है ना, ऐसा नहीं होगा। कहाँ जा रहा है आपको नहीं पता, पता नहीं कहाँ चला गया। वो घर में नहीं है अभी? रहेगा वो, पता नहीं नीचे हैगा शायद। अभी बुला रही हूँ इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आपके घर में है वो। बुलाइए, तुरंत बुलाइए। हाँ, तुरंत बुला। क्लास ही नहीं आता हो तो? शिवम, तुम रोज रेगुलर क्लास आते हो? शिवम, Yes, ma'am. शिवम, Yes, ma'am. तुम सब हर दिन क्लास आते हो? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. सृष्टि में तुम्हारी बात नहीं सुन रही हूँ, बिकॉज योर बिहेवियर इज नॉट साउंड। चार्ट में क्यों लिख के दे रहे हो? अगर हिम्मत है तो आओ, आके बात करो। यस मैम, मैं बोल रही थी क्या है तुम्हारी हैबिट? presentation। मैं क्यों बोल रही थी तुम क्यों नहीं आ सकते? तुम कैमरा क्यों नहीं हो सकते? मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करूंगी जिसका शक्ल नहीं दिखे। क्या पता तुम्हारी नाम पे कोई और बोल रहा है। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, नो चैट, कम टू द क्लास, ओपन योर माइक एंड देन टॉक टू मी। सारे बच्चे कैसे बिहेव करे? तुम्हारा बिहेवियर इतनी बार बोल दिया, लाइटली बोला, स्ट्रांगली बोला, बट यू आर नॉट चेंज। हर्षित, यस तुम्हारा मैम। टॉपिक क्या है? मैम पब्लिक फैसिलिटीज। नहीं, पब्लिक फैसिलिटीज मैं नहीं देखूंगी ना। दैट वर्ड इज नॉट देयर इन आवर बुक। तुम्हें बात समझ में नहीं आती? तुमको मना किया था करने के लिए, तुम फिर वही कर रहे हो। मैम मैंने चेंज कर लिया मैम उसमें, मैम बुक। उसको चेंज नहीं, बिल्कुल पब्लिक फैसिलिटीज टॉपिक ही नहीं है हमारी। मैम है मैम बुक में कोई एक वर्ड भी नहीं है बुक में।
मैम है। मैं नहीं लूंगी उसको जिसमें तुम कुछ नहीं किए। हर्षित, यस मैम। unless you change the topic, I will not see your presentation. ओके That's मैम। final. Do something from where you must learn. Record हो रहा है, everything is getting recorded. Yes, सृष्टि, आपका क्या मतलब क्या है बताइए आप। Why are you Yes, so unruly? ma'am. Call your Ma'am, mother. I I want to was talk to her. asking roll number. Call your mother. She is at home. साक्षी की तो कोई नहीं, सब गए क्या पता नहीं कहाँ, है ही नहीं, बंद है हुई। मैम मैं हूँ। क्या हो रहा है फिर, बंद करके क्यों बैठी हो? What kind of habit is this, साक्षी? तुमने भी ये चालू कर दिया? श्रमित से मैं बात थोड़ी कर, क्यों तुमने मैं हूं करके क्यों बैठे? लक्ष्य कहाँ गया है? मैम वो अभी उसके रूम में ही था, फिर पता नहीं। तुमको पता नहीं तो कैसे पढ़ेगा, कैसे पास करेगा? किससे बात करो? दादाजी, ताऊ जी, कोई भी है उनको बुलाओ, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को। सृष्टि, कॉल योर मदर, आई वांट टू टॉक टू हर। टाइम हो रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सृष्टि क्या बनेगी, क्या बनेगी? इस तरह का सोएगी। सौम्या, तुम्हारा कब प्रेजेंटेशन होगा? Ma'am, I want to show tomorrow. No, ma'am, day after tomorrow. तुम्हारे क्लास है? No, ma'am, day after tomorrow. सौम्या का नाम कहाँ है? मैं लिख देती हूँ। क्लास में आया करो, क्लास में आके खोल के बैठा करो ना। सृष्टि की मम्मी आ रही है ना उसकी मम्मी आ रही है। Who else? दिव्यानंद, दिव्यानंद, कहाँ है तुम? यस मैम। शक्ल दिखाओ। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी इस तरह का। तुमने क्या तुम्हारा प्रेजेंटेशन में ये क्या है? कब कर रही हो? कब? मैम परसों 20th को। यस मैम। अगर 20th को नहीं आया, देख तू, देख ले, मुझे 10th क्लास में बैठा है, सीधा 0 मिलेगा, तो देख लेना, सीधा 0। ये तो मैं अभी बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। मिस्टी, यस मैम। देख लो तुम, अपने वचन रखो या मैं 0 दूंगी ऑन द स्पॉट। हर्षित को मैं चांस दे रही हूँ, हर्षित वही खिलवाड़ करता फिर रहा है। मिस्टी, Yes, ma'am. तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब होगा? निकलो पहले, बात करो तमीज से। I'm on 19. मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूँ, पहले निकलो, फिर बात करूंगी। इन लोगों में से कौन सा तुम्हारा है मुझे क्या मालूम? Why should I talk to a लबो? क्या प्रॉब्लम है तुमको? अभी तक नहीं निकली वो लड़की। यस मैम। Srishti, I only talk to your mother, not to you. मैम Talk to your mother, not to you. Not at what? मम्मी घर में नहीं है तो कहाँ है? मैम अभी बाहर है। बुला के लाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। I want to talk to her. If I do not talk to her, you are not presenting. यस मैम। मिष्टी, मैं तुम्हारे लिए डेट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यू आर नॉट टॉकिंग टू मी प्रॉपरली। यस मैम, आई एम कॉलिंग माय मदर। पीयूष, मजाक समझ रखा है 10th क्लास को, है ना? मजाक समझ रखा है। पीयूष, मैम पीयूष नहीं है। हाँ, पीयूष का क्रॉस लगा देते हैं। प्रियंका हो गया, रम्या का हो गया। सचिन, है प्रिया? नो मैम, सचिन भी नहीं है। सचिन मजाक समझ रखा है, हर साल दिवाली मनाते तो लगा दिया।
शिवजीत यादव है? नो मैम। मैम शिवजीत भी नहीं है। शौर्य? वो भी नहीं है। सृष्टि? सृष्टि तो है, उस सृष्टि को बात करनी तो शुभम भार्गव का होगा इसमें, तो मैं करेगी। सुरुचि? सुरुचि? नहीं है मैम। हाँ जी, नमस्ते। एक मिनट, सृष्टि की मम्मी से बात करें। नमस्ते मैडम। यस मैम। जी मैम। आप सृष्टि के बारे में क्या सोच रहे हैं? She does not come to the class, she does not appear on the screen, she does not talk to me. मैंने इसलिए आपको बुलवाया, अभी तक उसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, स्कूल के ड्रेस में कभी आती नहीं है। मैंने उससे पूछा था, उसने बोला कि प्रेजेंटेशन उसने रेडी कर रखा है। वो जब नहीं, वो रेडी करके रखने से इसमें मुझे कोई, स्कूल को कोई फायदा नहीं है। इट हैज टू बी प्रेजेंटेड। व्हाई शी डज नॉट कम टू द क्लास? आज मुझे आपको इतना हरीली बुलाना पड़ा, आप नीचे थी। जब आपको जैसे जब भी पूछना होगा आप उससे पूछिएगा, फिर आप She does not come to the class. मैडम ऐसे आती नहीं है, अपियर नहीं होती, कैमरा नहीं खोलती है। अपियर क्यों नहीं होती? तो फिर मैं कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी। नहीं, कभी से नहीं करती है, शुरू से नहीं करती। सारे बच्चे पूछ लीजिए आप। ऑनलाइन तो रहो करो ड्रेस पहन के। मम्मी मैं ड्रेस पहन के ऑनलाइन रहती हूँ। क्यों नहीं ड्रेस पहन सकती हो? पहनती थी। स्कूल जाती तो ड्रेस नहीं पहनती, क्यों नहीं ड्रेस पहनती है? यस मैम, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, इसको ड्रेस पहन कर ही वो रेडी रहेगी। अब देखिए, एंटायर क्लास नहीं हूँ मैं उसकी तारीफ करते हुए तकती नहीं हूँ, पर वो लड़की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। मैं आपको बोलती हूँ, रिस्पेक्ट नहीं है, सुनती नहीं है। अगर उसके अंदर इतना टैलेंट है, पर उसको चमकाने की कोई जरूरत नहीं है उसको। मैं रोज बोलती हूँ, पूछो सब लोगों को कि सृष्टि अनदर गर्ल है जो एक IAS अफसर बन सकती है, पर कैसे बनेगी? सोचो के सृष्टि की बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेड। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, देख लीजिए 10th क्लास में बैठी है लड़की, 10th क्लास में सारे लोग ड्रेस पहन के बैठे हैं, वो क्यों नहीं पहन सकते? स्कूल खुलेगा तो 7:30 बजे स्कूल आना पड़ेगा। पढ़ाई में इतना नेग्लिजेंस। आई एम वेरी सॉरी, बट शी इज नॉट डूइंग वेल, बट शी इज नॉट डूइंग, आई एम नॉट हैप्पी। ओके, लक्ष्य आ गया? लक्ष्य? यस मैम, उसने ज्वाइन किया है। कहाँ निकले तो? कहाँ गए वो? ऊपर ज्वाइन करे पर आया ही नहीं। लक्ष्य, क्या करूं मैं? तो तेरी पैर पकड़ू? साक्षी? यस मैम। वो आ गया, ज्वाइन कर गया, तो आ ही नहीं रहा मेरे में। बात किससे करूं? साक्षी, अरे होने से क्या होगा? मेरे से कहाँ एल लिख के बैठा है। अच्छा श्रेया, देखो अभिषेक जैन आया है। नो मैम। अच्छा, हेमा मैडम चिल्ला रही थी बहुत तेज। हम इसका चाह रहे चेस्ट और सीधे चेंज ऑफ टॉपिक, अदरवाइज आई विल गिव यू 0। लक्ष्य, प्रेजेंटेशन कब दोगे? तू क्या सोच रहा है अपने मन से? तू ऐसा कर करके 10th पास कर जाएगा? नो लक्ष्य, इतना पागल होना ठीक नहीं है। कब दे रहे तू प्रेजेंटेशन? नहीं तो सीधे 0 दूंगी मैं, ध्यान रखो। हमारे पास ऑर्डर है, हम ही लोग लगे हुए तुम्हारे पीछे। बोलो लक्ष्य, मैं कुछ पूछ रही, तुमको टाइम ओवर हो गया, मुझे दूसरे क्लास में जाना है। तुम्हारी प्रेजेंटेशन कब दे रहे हो तुम यहाँ पे? PPT लक्ष्य, तुमको पता है 21 तारीख को तुम्हारा गूगल फॉर्म का टेस्ट है? डू यू नो दिस? क्या? यस मैडम। तो PPT कब देगा ये बता। मैम अगली क्लास में। अगली क्लास डेट बताओ। 19 को नहीं हो पाएगा तो? यस। कौन फुस करके बता रहे हैं उसको? लक्ष्य, बिना पढ़े लिखे तुम रास्ते में, तुम जिंदगी में खड़े ही नहीं हो सकते। कितना बात है कि तुम इस बार 9th में बढ़िया रिजल्ट करके पास किया अपने बलबूते, और तुम क्लास में आते नहीं, शक्ल ही नहीं दिखा।
19 तारीख को नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे देना 20 को। मिष्टी आपका तारीख कब है? मैम 19 को। 19 को नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे देना है। यस मैम। मिष्टी ये भी बदतमीजी है जो तुम वो उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हो मेरे साथ। नो मैम, मैंने वीडियो ऑन कर लिया। कहाँ? सबको पूछो, तुम्हारी लोगो ही दिख रहा है। मैम उसका वीडियो है ऑन। वीडियो ऑन है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है वो। मैं वही बात करूंगी जो मुझे दिख रहा है। मैम मेरा वीडियो ऑन है और माइक भी ऑन डोंट टॉक कर इट दिया। अगेन एंड सृष्टि, तुम्हारा कब है प्रेजेंटेशन? मैम और 19, और अगर 19 को नहीं हुआ तो नेक्स्ट पीरियड। मैंने लिखा है सुरुचि आई है। श्रेया सुरुचि मैम उधर मैम नहीं है। सुरुचि ना इधर आती है ना उधर आती है। मैडम बोलो किया का हो गया है, बासवा शिवम कब देगा? तो गूगल फॉर्म का है। दिनांक यस का हो गया, यहीं पे करो। यसी मैम नहीं है यश। मैम नहीं है, लीव हो गई वो। ऐसे ही चलाते रहे कार्यक्रम। लीव हो जाओ, लीव जिंदगी से लीव हो जाना पूरा 10th क्लास में। चलो शांति पाठ करते हैं बेटा। ये देखो हेमा मैडम वहां पे सेटिस्फाइड नहीं। 10th क्लास से कोई चिंता है तुम लोग? ओम शांति शांति शांति। ओके यू कैन लीव। थैंक यू मैम। क्लास होगा ना बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम, सायरा मैम। थैंक यू मैम, सायरा मैम। थैंक यू मैम, सायरा।